opportunities in the field of solar business. Okay. These are some ideas which are available in your field, provided you have decided to get into this field, which you have. You can get into the business of selling solar products. Now, what are these solar products? For example, solar pumps, solar lights, solar chargers, solar photovoltaic cells, solar thermal systems, ये जो ऊपर हीटर लगते हैं ना पानी के, that is one option. Manufacturing solar products, if you have the background in production or manufacturing, you can start producing solar panels. You can start on power grids or products which we have mentioned in the previous slide. It might seem a huge investment to start manufacturing, but in reality, considering that the market is growing exponentially, the market is growing exponentially. All right. It will not be a waste if you start, if you have the background, if you have the passion, get into the manufacturing. Number 3 is you invest in solar projects or develop your own. You can hire a good consultant and start your own solar plant, which you will receive government aids and grants. Yesterday I gave you the site. You can visit what are the various schemes government is offering. You can also invest in somebody else's plant. It is not necessarily that you start your own plant. एक किसी existing plant में आप partnership ले सकते हैं, उसमें invest कर सकते हैं, and you give them your expertise. You can become a consultant on solar energy. In case you have the expertise, you can become a consultant. You can start servicing solar products. If you don't have the manufacturing background, if you don't want to start trading, you start your own servicing operation. And this business will require a very small investment. And you provide only maintenance and repair services. No selling, no buying, only repairs and maintenance. That is another option available to you. Panel installation business. There are different types of solar panels from 3 to 300 watts, maybe even more than that. You may enter into a franchisee agreement with a panel manufacturing company of brand value. किसी बड़ी कंपनी के साथ में फ्रेंचाइजी अरेंजमेंट कर लीजिए. एक बार आप बड़ी ब्रांड के साथ में एसोसिएट होते हैं तो उसके बाद आप अपने प्रोडक्ट्स भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. And then you have solar plates manufacturing, which is a business opportunity. उसके लिए आपको लाइसेंस की जरूरत होगी. एक बड़ा मजबूत बिजनेस मॉडल बनाना पड़ेगा, पर इसमें आपको गवर्नमेंट एड और ग्रांट्स वगैरह काफी मिल सकते हैं. आपको ट्रेंड सोलर एनर्जी एक्सपर्ट्स हायर करने पड़ेंगे. So these are some different kinds of options, ideas available in your this thing. एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाना है हमको, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किस लेवल पे है. ह्यूमन रिसोर्स प्लान, मुझे किस देखिए, जब हम आदमी रिक्रूट करते हैं तो हम आदमी रिक्रूट नहीं करते हैं. हम क्या रिक्रूट करते हैं? नॉलेज, उसकी स्किल. नॉलेज तो मैं भी दे सकता हूँ, पर स्किल मैं नहीं दे सकता हूँ. स्किल देने के लिए उस आदमी को अपना एक्सपीरियंस को बार बार इंप्रूव करना है. तो मैं जब भी, आप ये भी ध्यान रखिए कि जब भी आप किसी एम्प्लॉय को अपॉइंट करें, don't look at his personality, don't look at his height, don't look at his color, don't look at his beauty. Look at what skills the person has.
क्योंकि आपको फायदा उस ह्यूमन बीइंग से नहीं होगा, उसकी स्किल से होगा। तो आइडेंटिफाई द स्किल्स जिसकी आपको जरूरत है, और उस स्किल को मैच करता हुआ कौन बंदा आपके सामने है, उसको रिक्रूट कर दीजिए। आपके प्रोडक्ट और सर्विस की डिलीवरी कैसे होगी, कस्टमर सपोर्ट, फैसिलिटीज, फाइनेंशियल, ये सब आप तैयार रखिए। एजम्पशंस एंड कमेंट्स, आपकी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, वो सारी चीज आपके पास होनी चाहिए। सब जितने डॉक्यूमेंट्स आप बना, जैसे मैंने आपको कहा, जो भी बना सकते हैं बनाइए, आपके पास होना चाहिए। एक फाइल में ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए आपके पास। तो ये, अब आप मुझे बताइए, ये हमने सारे सब कुछ डिस्कस कर लिया, कुछ छूटा क्या? एक बिजनेस प्लान बिजनेस के बारे में है, मार्केटिंग के बारे में नहीं है। एक अकाउंट्स फाइनेंस के बारे में नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स के बारे में नहीं है। बिजनेस, एंड व्हाट इज बिजनेस? बिजनेस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस। अब हम एक बिजनेस प्लान बनाएंगे, ठीक है? ये आपके सामने इंडेक्स, टेबल ऑफ कंटेंट्स। जब आप एक बुक खरीदते हैं तो बुक में सबसे पहले चैप्टर्स की लिस्ट होती है कि नहीं? हाँ हाँ। तो ये हमारी चैप्टर की लिस्ट है। हमारे बिजनेस प्लान में 9 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर है एग्जीक्यूटिव समरी, जो मैं आपको बता रहा था। आपने इतनी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी है, इतनी सारी पढ़ने में मुझे बहुत टाइम लगेगा ना, मेरे को इंटरेस्ट है। मैं सिर्फ 5 मिनट में इस डॉक्यूमेंट में क्या है वो समझना चाहता हूं। दैट इज नोन एज एग्जीक्यूटिव समरी। ऑल्दो दिस इज द फर्स्ट चैप्टर, बट दिस इज रिटन द लास्ट। सारी रिपोर्ट लिखने के बाद में ये चैप्टर नंबर 1 लिखा जाता है। नॉर्मली आपने बुक में देखा होगा, पहले फॉरवर्ड होता है। पर ये फॉरवर्ड नहीं है, ये है लास्ट वर्ड। चैप्टर 2 आपके बिजनेस का डिस्क्रिप्शन। मैंने आपसे कहा था कि एक बिजनेस प्लान क्या होता है, आपका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या करना चाहते हैं, कैसे करेंगे। तो अब ये बिजनेस डिस्क्रिप्शन में आप लिख लीजिए। उसके बाद कैसे करेंगे? मार्केट एनालिसिस, नंबर 4 कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, नंबर 5 सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान, नंबर 6 ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, क्योंकि वो कंपनी चलाने वाले कौन लोग हैं। अगर आपके पास अच्छे लोग नहीं है तो आपका प्लान तो बहुत बढ़िया है, पर उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? उसके लिए अच्छे आदमी चाहिए। व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ योर मैनेजमेंट? ऑपरेटिंग प्लान, ये प्लान को आप इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग कैसे करेंगे, क्वालिटी कैसे करेंगे, मार्केटिंग कैसे करेंगे, ऑपरेटिंग प्लान। फाइनेंशियल प्लान, पैसा आप बाहर से ले रहे हैं, वापस करना है, और जब तक वापस नहीं करेंगे उसके ऊपर इंटरेस्ट देना है। तो देयर हैज टू बी अ गुड डिसिप्लिन। दूसरी बात, फाइनेंशियली एम आई वायबल? मैं कितनी भी कोशिश करूंगा, पर क्या मुझे प्रॉफिट मिलने वाला है? मिलने वाला है, कितना मिलेगा, कब मिलेगा? एंड लास्ट में अपेंडिसेस एंड एग्जिबिट्स। जैसे मार्केट एनालिसिस, आपने मार्केट रिसर्च करी, उसकी रिपोर्ट। आपके ओनरशिप मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स हैं, उनके बायोडाटा, उनके सीवीज, आपकी बैलेंस शीट, आपका प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारे आपके अपेंडिसेस में आ जाएंगे। इसको हम ऐसा करते हैं कि एक एक करके थोड़ा जल्दी जल्दी, क्विकली आई विल डिस्कस व्हाट आर दीज। द फर्स्ट चैप्टर इज योर executive summary. It provides an overview of what is following. आपका मिशन क्या है? Now I am talking about mission, not vision. Mission is a shorter term. अगर आप लिखेंगे कि मैं 10 साल में मार्केट लीडर बनूंगा, पर वो 10 साल में क्या होगा?
और वो मार्केट लीडर आप 10 साल में कैसे बनेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल आप अपना एक इंडिविजुअल केस ले लीजिए, मैं 10 साल में वाइस प्रेसिडेंट बनना चाहता हूँ, तो 10 साल में वाइस प्रेसिडेंट के लिए आपको हर साल प्रमोशन मिलना है, तभी आप 10 साल में वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे। अगर आप 5 साल में आपको एक भी प्रमोशन नहीं मिला तो क्या आप 10 साल में वाइस प्रेसिडेंट बन जाएंगे? नहीं बनेंगे। तो एग्जीक्यूटिव समरी, ये जितना भी नीचे है उसकी एक व्हाट शुड वी से, उसका जूस निकाल दिया है हमने। 10 ऑरेंजेस लेके उसका जूस निकाल दिया, फिर मैं वो जूस पी रहा हूँ। पूरे प्लान की जो पावर है, जो शक्ति है, जो स्ट्रेंथ है, दैट इज एग्जीक्यूटिव समरी। नंबर 2, बिजनेस डिस्क्रिप्शन। जैसे मैं आपको बताया आपकी इंडस्ट्री के बारे में, मेरी इंडस्ट्री, कंट्री की इकोनॉमी के बारे में, कहाँ पे बिजनेस करेंगे, आपके पास कौन सी टीम है, गवर्नमेंट से आपको जहाँ पे आपने अपनी फैक्ट्री लगाई है वहाँ पे आपको क्या क्या सहूलियत मिलेगी, पूरी इंडस्ट्री के बारे में जिसमें आप ऑपरेट करेंगे। मार्केट एनालिसिस, very crucial section of business plan. Why is it very crucial? Because it helps you to identify your customers and clients. Only through market research you will know where is my target market, where are they located, what are their characteristics. This will give you a thorough knowledge about your customers. Number 4, competitive analysis. Competition के बारे में आप उनसे कहाँ मजबूत है, कहाँ उनसे वीक हैं, और कहाँ आपको रिस्क ज्यादा लगता है, कहाँ आपको खतरा ज्यादा दिखाई देता है, कहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। हाउ विल यू, आपका प्रोडक्ट बन गया, सर्विस तैयार है, आप कस्टमर तक कैसे लेके जाएंगे, क्या स्ट्रेटेजी है? जैसे मैंने आपको कहा था, हाउ आर यू डिफरेंट, सो व्हाट इज योर यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, यूएसपी क्या है आपका, दैट विल कम इन योर सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान। मार्केटिंग प्लान में आप एक क्वेश्चन का जवाब ढूंढ के रखेंगे कि कोई भी कस्टमर मेरे से क्यों खरीदेगा, मेरे कॉम्पिटिटर से क्यों नहीं खरीदेगा, and that this answer you should make available to all your marketing and sales system. Why a customer will come to me and not go to a competitor. Ownership management, as I said, आपकी बिजनेस को चलाने वाले ह्यूमन बींग्स हैं, कितने एक्सपर्ट हैं, आपकी गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर कितना एक्सपर्ट है, how will he be careful in driving, how can he avoid accidents, how can he anticipate कि आगे क्या हो सकता है, कब स्पीड कम करनी है, कब स्पीड तेज करनी है, कब गाड़ी रोकनी है, he should be an expert. ऑपरेटिंग प्लान, जैसे मैंने आपको बताया, सारी प्लानिंग को ऑपरेशनलाइज करने के लिए आपकी फिजिकल लोकेशन, आपकी फैसिलिटीज, आपका इक्विपमेंट, आपके कंप्यूटर्स, आपके एम्प्लॉइज, आपका इन्वेंटरी रिक्वायरमेंट, आपका स्टोर, आपके सप्लायर, आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, everything, how are you going to implement 2 to 6. And then a very important aspect, देखिए हर एक चीज पैसे से चलती है, पैसे कहाँ से आएंगे, कहाँ जाएंगे, जब पैसा आएगा तो उसके ऊपर किस तरह का कंट्रोल आपका होगा, कितने फंड्स की जरूरत होगी, कितने फंड्स आप अब अंदर से निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको
इम्प्रूव करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी। क्या आप अंदर से पैसा कुछ निकाल सकते हैं? क्या आप पूरी फंडिंग बाहर से करेंगे? आपका ब्रेक इवन कितने साल में आएगा, कितनी यूनिट्स पे आएगा? ऑल दिस विल कम इन फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस। और अपेंडिक्स तो मैंने आपको बता दिया। फॉर एग्जांपल आपके प्रोडक्ट के फोटोग्राफ, आपके पास कुछ पेटेंट्स है तो पेटेंट्स का, आपके पास आईपीआरस हैं वो, आपके पास क्रेडिट हिस्ट्री अगर आपके पास है, आपके टॉप मैनेजमेंट और की मैनेजमेंट का रिज्यूमेज, मटेरियल, पब्लिसिटी मटेरियल क्या क्या है आपके पास, आपकी वेबसाइट। अगर किसी को इंटरेस्ट है वो देख लेगा, नहीं तो ज्यादातर लोग आपकी समरी पढ़ के कर दे। ये एक आपको मैंने ब्रीफ आइडिया दिया। आपके स्क्रीन पे एक ये है उस प्रेजेंटेशन का। दिस इज हाउ यू शुड प्रेजेंट, इट शुड बी प्रेजेंटेबल। ऐसा नहीं कि आपने एक सरकारी फाइल या बाहर से फ्लैट फाइल खरीद ली, उसके अंदर लगा दिया और उसको दे दिया, बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन इज ऑलवेज a lasting impression. All right, now how to organize? How to organize का मेरे पास एक ही रिकमेंडेशन है, खाली चैप्टर 1 समरी होना चाहिए, बाकी आपके बिजनेस में कौन सा फंक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप समझते हैं कि आपके एम्प्लॉइज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो बहुत क्रूशियल है, तो उसके बाद उनको रख लीजिए। मार्केटिंग इंपॉर्टेंट है, उसको रख दीजिए, ठीक है, इट इज लेफ्ट टू यू। बट chapter 1 must always be your executive summary, right? Now it is a formal document. जब आप उसको तैयार कर रहे हैं, प्लीज पे अटेंशन टू आप कौन सा फॉन्ट यूज कर रहे हैं, कौन सा पेपर यूज कर रहे हैं, कौन से कितना बड़ा फॉन्ट यूज कर रहे हैं, उसकी स्पेलिंग चेक करिए, उसका ग्रामर चेक करिए। अगर आपको उसकी कॉपीज बनानी है तो किसी अच्छी दुकान से, अच्छे किसी जॉब ब्यूरो से कराइए, बिकॉज दिस इज अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट। और आपके पास ये भी वक्त नहीं है कि अगर वो कोई पूछता है तो आप बोलेंगे हाँ ठीक है मैं कल लेके आता हूँ। नहीं, यू विल गेट ओनली वन चांस। जैसे आप किसी मीटिंग में जाते हैं तो अच्छे अपने को अच्छा प्रेजेंटेबल बना के जाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, प्रेस करे हुए कपड़े पहनते हैं, जूता पॉलिश करते हैं। वैसा ही ये बिजनेस जो प्लान है ये आपकी पर्सनैलिटी है। अब आप इसको कैसे दिखाना चाहेंगे लोगों को, इट इज लेफ्ट टू यू।